Miss Abha Negi, Managing Director, One World Foundation India, Miss Nadia Rashid, Deputy Resident Representative, UNDP India, friends and colleagues from the fraternity of community radio stations across the country. It gives me immense pleasure to be part of this interaction today, and particularly when these interactions are focused on building the capacity of community radio stations across the country to participate in the ongoing fight against the pandemic. I would like to congratulate One World Foundation India as well as the UNDP for providing this platform so that healthcare practitioners, administrators, policymakers, people who are part of community radio stations, they could all come together and discuss what has been done so far and what is the road ahead. We must not forget that now it's almost a year and a half that the country has been tackling this challenge posed by COVID-19 pandemic. तो पिछले 1.5 साल के अनुभव ने हमको जो सिखाया है उसके आधार पर आगे बढ़ते हुए हमें और क्या करना चाहिए और उसमें कम्युनिटी रेडियो की क्या भूमिका हो सकती है, ये बातें इस इंटरैक्शन से और उभर कर आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है. Friends, before we come to the role of the community radio and what can be done more by community radio practitioners, let me also share with you that so far the union government has followed a proactive, a graded, and a whole of the government as well as whole of society approach in dealing with the COVID-19 pandemic. So basically what it means when we say whole of government and whole of society approach to tackling the pandemic, it means that we do not think that it is the sole responsibility of Ministry of Health, Government of India to address the challenges posed by the pandemic. The pandemic has posed multifaceted challenges. जो महामारी ने हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत की है वो मल्टीफेसेटेड चुनौती. Therefore, it cannot be tackled by one ministry. It has to be tackled by adopting whole of the government approach. पूरी सरकार, सरकार के सभी मंत्रालय, सरकार के सभी विभाग. Similarly, the pandemic can be tackled by adopting whole of society approach. समाज के सभी तबके, समाज में वो लोग जो उद्योग में हैं, वो लोग जो व्यापारी हैं, वो लोग जो शिक्षा शास्त्री हैं, वो लोग जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वो लोग जो रेडियो चलाते हैं, ये सब मिलकर, so whole of society and whole of government approach is the strategy followed by Government of India in tackling this pandemic in the last year and a half, and this strategy is showing results because you will see that since the last almost 2.5 months, the cases, new cases, COVID-19 के जो नए केस हैं, these new cases are showing a consistently declining trend. The positivity at the national level is less than 3% now for almost 16 weeks successively. पिछले 16 सप्ताहों से अधिक समय से जो टेस्ट पॉजिटिविटी होती है उसमें भी लगातार गिरावट हो रही है, और जैसा अभी मिस नेगी ने बताया कि 98%, 98% इज द रिकवरी रेट. तो चीजें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि हम अब केयरलेस हो जाएं और हम कहें कि चुनौती खत्म हो गई है, अब हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की आवश्यकता नहीं है. सो द चैलेंज स्टिल रिमेन्स, although the situation at present looks satisfactory. So apart from emphasizing the whole of the government and whole of society approach, Government of India has also stressed on 5 pillars. 5 स्तंभों पर आधारित हमारी स्ट्रैटेजी रही है, और ये जो 5 पिलर्स हैं ये हैं टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट,
and follow COVID appropriate behavior. अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, जब हम कहते हैं टेस्ट, जब तक आप लोगों के टेस्ट नहीं करेंगे, चाहे आरटीपीसीआर हो या रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या किसी अन्य व्यवस्था के तहत किए गए टेस्ट हो, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन लोग पॉजिटिव हैं, किन लोगों में इन्फेक्शन है, संक्रमण का फैलाव क्या है, व्हाट इज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इसको जानने के लिए टेस्टिंग आवश्यक है। हर एक राज्य में टेस्ट्स को बढ़ाया गया है। तो ये पहला पिलर है, टेस्ट। दूसरा पिलर है ट्रैक। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब आपने किसी व्यक्ति को टेस्ट किया और पाया कि वो आदमी पॉजिटिव है, तो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स कौन है, उनको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो इन्फेक्शन इस पॉजिटिव आदमी से उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स में गया हो। तो दैट इज व्हाट इज नोन बाय ट्रैक. So while testing is important, tracking is equally important. And once you test and track and you find people who are positive, then you treat. इसका अर्थ है कि जिन लोगों में लक्षण हैं उनको ट्रीटमेंट तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। ट्रीटमेंट का अर्थ केवल अस्पताल में भर्ती होना नहीं है। ट्रीटमेंट का अर्थ ये भी है कि अगर हमें लगता है कि उस व्यक्ति में जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो माइल्ड हैं, कम हैं, तो उसको हम होम आइसोलेशन में भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर मॉडरेट या सीवियर सिम्टम्स हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। और जब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो एक नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार की दवाएं दी जाएं, कब ऑक्सीजन दिया जाए, किस रेट से ऑक्सीजन दिया जाए। तो ये ट्रीट का जो पिलर है उसके तहत आता है। चौथा पिलर जो है वो है वैक्सीनेट। हमारे देश में इस समय राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम में 3 वैक्सीन प्रयोग में लाई जा रही हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन है, ये हमारे देश में मैन्युफैक्चर की जाती है, इसका उत्पादन हमारे देश में होता है। दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन वैक्सीन है। कोवैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जिसकी रिसर्च, जिसका डेवलपमेंट और जिसका मैन्युफैक्चर, तीनों चीजें भारत में होती हैं। और तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक वी, ये रशियन वैक्सीन है लेकिन भारत में भी मैन्युफैक्चर की जाती है। तो ये वैक्सीनेशन में हम ये कहते हैं कि 18 बरस से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की सुविधा प्राप्त हो। और सरकार ने कहा सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, यानी जो सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर आएंगे उनको मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध होगी। और जिनके पास पेमेंट करने की क्षमता है वो प्राइवेट जगहों पर भी जा सकते हैं और वहां अगेंस्ट पेमेंट वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज ए यूनिवर्सल vaccination program for 18 plus population. Those who have the capacity to pay can go to private vaccination centers and pay and get themselves vaccinated. जिनके पास वो क्षमताएं नहीं है या क्षमता होते हुए भी जो सरकारी केंद्रों में आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है और वहां मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध है। इसका क्या असर हुआ है? इसका असर ये हुआ है कि आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, देश में कुल एडल्ट जो जनसंख्या है उसके 74% लोगों को एक ना एक वैक्सीन डोज मिल गई है। 74% of the total adult population of the country has received at least one dose. This is a huge number. This itself translates to 69 crore people. 69 crore people have received at least one dose. Similarly, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश की 30% बालिग आबादी को दोनों डोज मिल गए। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये इसलिए हो पाया कि एक बड़ा तंत्र, a huge network of COVID vaccination centers was created, जो कि सरकार में भी थे और प्राइवेट सेक्टर में भी थे। सरकार के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में मुफ्त में वैक्सीन और प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में अगेंस्ट पेमेंट वैक्सीन, जिसका नतीजा ये निकला कि देश की
एडल्ट आबादी का 74% को एक डोज मिल गई और 30% को दोनों डोज मिल गई। अब आगे जाते हुए हमें ये देखना है कि जो लोग छूट गए उनको भी कोविड वैक्सीन मिल जाए। तो ये 4 पिलर मैंने आपको बताए। 5वां पिलर जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का है, यानी कोविड के अनुरूप आचार और व्यवहार। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि हम मास्क पहने, हम एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रखें, हम भीड़ भाड़ न लगाएं और न भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, हम वेल वेंटिलेटेड कमरों में ही मिले। वेंटिलेशन महत्वपूर्ण है। एक कमरे की सब खिड़कियां, सब दरवाजे बंद कर हम बैठक करें, ये भी कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं है। तो ये 5 पिलर हैं: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको भारत सरकार ने अभी तक अपनाया है। अब इस परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना है कि कम्युनिटी रेडियो ने क्या भागीदारी अपनाई है और भारत सरकार के नजरिए में कम्युनिटी रेडियो को क्या जिम्मेवारी निभानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी है, टीकाकरण की जो नीति है, उसमें कम्युनिटी रेडियो का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। वो लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं, लोगों को सही जानकारी समय पर दे सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण रोल है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग अपनाएं। आप लोग समय समय पर अखबारों में या टीवी चैनल्स पर या रेडियो पर ये सुनते होंगे कि रिवेंज ट्रैवल हो रहा है। रिवेंज ट्रैवल क्या है? कि हम 1.5 महीने से घर में बैठे हुए थे, तो इसलिए अब सब सावधानियों को परे फेंकते हुए चलो मसूरी घूम के आते हैं, या चलो चंडीगढ़ चलते हैं, या चलो शिमला चलते हैं, या चलो कहीं और चलते हैं। क्या जरूरत है? क्या आप अगर 2 महीने या 3 महीने बाद जाएंगे तो वो मसूरी, शिमला, चंडीगढ़, वो क्या अपनी जगह पर नहीं रहेंगे? वो रहेंगे। लेकिन एक ये रिवेंज ट्रैवल का फिनोमिना हम सब लोग देख रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये कोविड अनुरूप व्यवहार के लिए भी, के दृष्टिकोण से भी एक चुनौती है। दूसरा है रिवेंज ईटिंग आउट। हमने 1.5 साल से रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाया, तो चलिए अब सबके सब 100 लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, लाइन लगी हुई है, कॉफी की दुकान पर लाइन लगी हुई है, एज इफ कि वहां फ्री में मिल रहा हो। ऐसा तो नहीं है। क्या आप वही काम घर पे अपने परिवार के साथ नहीं कर सकते? अपने दोस्त मित्रों के साथ नहीं कर सकते? वेल वेंटिलेटेड वातावरण में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक भेड़ चाल, होड़ है कि अच्छा सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। दिल्ली में हूं तो क्यों ना खान मार्केट चला जाऊं, दिल्ली में हूं तो क्यों ना साउथ एक्सटेंशन चला जाऊं, दिल्ली में हूं तो क्यों ना किसी मॉल में चला जाऊं। तो ये भी सावधानी बरतने का समय है। और जो भी मैं आपको कह रहा हूं, ये सब आई एम स्पीकिंग विद फुल सीरियसनेस। सो देयरफॉर वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज ईटिंग आउट and any such event which has the potentiality of spreading the infection. और इस सब में कम्युनिटी रेडियो की एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों है? क्योंकि आपका एक मास कनेक्ट है। आप एक क्षेत्र विशेष के कम्युनिटी रेडियो हैं। आप एक पर्टिकुलर डिफाइंड ज्योग्राफी में काम करते हैं, और वहां आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आपकी ब्रांड इक्विटी है, आपके बहुत सारे जो प्रेजेंटर या आरजेज हैं उनकी अपनी एक फॉलोइंग है। एट टाइम्स इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ कल्ट फॉलोइंग, विच इज गुड। सो देयरफॉर यू मस्ट यूटिलाइज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू पॉइंट देम इन द राइट डायरेक्शन। तो सही दिशा लोगों को दिखाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के माध्यम से। हमने जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई थी जनवरी 2021 में कोविड वैक्सीनेशन के दौरान, उसमें हमने राज्यों को कहा था कि आपको भी कम्युनिटी रेडियो से एंगेज करना चाहिए राज्य के स्तर पर, और भारत सरकार को भी एंगेज करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि इन मुद्दों की ओर
हम कम्युनिटी रेडियोज का ध्यान आकृष्ट कर सकें। हमने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये अनुरोध किया है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से भी ये अनुरोध किया है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी अनुरोध किया है, क्योंकि उनका भी किसी न किसी तरीके से कम्युनिटी रेडियो से संपर्क बना रहता है। तो ये मंत्रालय भी हमारे साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि समय पर लोगों को सही जानकारी मिले, टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। टीका की सुविधा कहां उपलब्ध है? टीके की सेकेंड डोज का अंतराल, द इंटरवल बिटवीन 2 डोजेस, वो क्या है? अगर घट गया तो वो कितना हो गया, अगर बढ़ गया तो वो कितना बढ़ गया? टीके के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनको कैसे दूर करें? सो डिलीवरिंग टाइमली, एक्यूरेट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू पीपल इज अनदर एरिया वेयर कम्युनिटी रेडियोज कैन वर्क। अब मैं लास्ट में, अंत में केवल कुछ स्पेसिफिक सुझाव और देना चाहता हूं जो हमारे मंत्रालय के आंतरिक डिस्कशंस में आए हैं। एक तो ये आया कि अभी से लेकर 31 दिसंबर तक देर आर अ सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स। दशहरा अभी बीता, दीपावली आएगी, फिर छठ है, उसके बीच में कल ईद भी है, अन्य पर्व हैं, न्यू ईयर ईव है। तो पर्वों को कोविड एप्रोप्रिएट तरीके से कैसे अपनाएं? कोविड सेफ फेस्टिविटीज. So this could be one theme that all community radios could develop for their audiences. The second is that community radios must engage with local influencers and local experts and either interview them or take their sound bites and then disseminate, क्योंकि उसका भी असर स्थानीय कम्युनिटीज पर, स्थानीय समुदायों पर पड़ता है। तीसरा जो मुझे कहना था वो ये कि आप इनोवेटिव जिंगल्स बना सकते हैं स्थानीय भाषाओं में, जो कि लोगों को बताएं कि कैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, कैसे समय पर टीका लगाएं। आप बड़े बड़े जो आपके यहाँ बाजार हैं, उनके जो शॉपकीपर्स हैं या उनकी जो एसोसिएशंस हैं या जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उनके साथ वार्तालाप, उनके साथ कन्वर्सेशन यू कैन एयर ऑन योर कम्युनिटी रेडियो। वो बता सकते हैं कि दुकानों में, बाजारों में, घरों में किस तरीके से लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। इसी प्रकार आप धार्मिक शख्सियतों से भी, रिलीजियस पर्सनालिटीज, फेथ लीडर्स, उनके साथ भी आप कन्वर्सेशन अपने रेडियो पर सुना सकते हैं लोगों को। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं जो मैं चाह रहा था कि कम्युनिटी रेडियो आगे जाते हुए अपने स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करें। मैंने अपने नियत समय से ज्यादा समय ले लिया है, इसलिए मैं एक बार क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे सीधे संवाद कर सकूं और जो हम मंत्रालय के भीतर कर रहे हैं और सोचते हैं वो आपसे शेयर कर सकूं। आपके इस आयोजन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आशा करता हूं कि वन वर्ल्ड फाउंडेशन इंडिया और यूएनडीपी आप लोगों के साथ इसी प्रकार से एंगेज करते रहेंगे, ताकि आपकी जो भागीदारी है, सकारात्मक भागीदारी, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, वो हमें प्राप्त होता रहे और हम कोविड-19 के अगेंस्ट जो ये लड़ाई चल रही है उसमें विजयी हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।